السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے سائفر کے بارے میں۔ وہی سائفر، جی ہاں، جس سائفر کی وجہ سے عمران خان صاحب کی حکومت کو گرایا گیا، وہی سائفر جس سائفر کو کچھ صحافیوں نے، کچھ پولیٹیشنز نے، بڑے بڑے نامی گرامی ہستیوں نے کہا تھا کہ یہ سائفر ہے ہی نہیں، جھوٹا ہے، من گھڑت ہے، خالی کاغذ کا ٹکڑا ہے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا۔ تو کچھ دنوں کے بعد سائفر حقیقت بن گیا، سائفر کے بارے میں کیس چلنا ہو گیا، جو کچھ سائفر میں لکھا ہوا تھا وہ سب کچھ ہونے لگا۔ عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی اور پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی۔ چلتے چلتے عمران خان صاحب پر پابندیاں لگنے لگیں، اس کی پارٹی ختم ہو گئی، بند ہو گئی، بین ہو گئی۔ ایون کہ اس کے جو لوگ تھے پی ٹی آئی کے کارکن یا رکن، ان کو بین کر دیا گیا۔ مین کہ بہت کچھ ہوا، اور اس کے علاوہ سائفر گم ہو گیا۔ سائفر جب گم ہو گیا تو تحقیقات شروع ہو گئیں، خان صاحب پر کیسز چلنے لگے۔ خان صاحب پر جب کیسز چلنے لگے، بالآخر خان صاحب کو مجرم ٹھہرا دیا گیا۔ آپ سب نے دیکھا، سنا، جانا۔ تو آج کی جو اہم پیش رفت ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ اس کی تشویش اس ملک میں بھی ہے جہاں سے یہ سائفر آیا تھا۔ یہ سائفر آیا تھا امریکہ کی طرف سے۔ آج کی جو ریسنٹ اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے، بہت اہم ہے۔ سائفر جو ہے نا، وہ امریکہ میں اوپن ٹرائل ہوگا کیس اس کا، اور مین کہ امریکہ کی عدالت میں یہ کیس سنا جائے گا، اس پہ تحقیقات ہوں گی، اس پہ اوپن ٹرائل ہوگا، کیس کو باقاعدہ ویسے ہی عدالت میں سنا جائے گا، اس کی ہیئرنگ ہوگی بالکل ویسے جیسے پاکستان میں ہوا۔ تو اللہ نہ کرے دیکھتے ہیں کہ بھی کیا ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب مجرم ٹھہرتے ہیں، یا سابقہ چیف آف آرمی سٹاف پہ کوئی نہ کوئی اگر کوئی الزام عائد ہوتا ہے، یا اسد مجید صاحب جو امریکہ میں پاکستانی سفیر ہیں، ان کی طرف سے کوئی معاملہ آتا ہے، یا پھر امریکہ کے جو سفیر تھے ڈونالڈ ٹلو، اس پر کوئی معاملہ آتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ یہ تقریباً اگلے منتھ کے مارچ کے پہلے ہفتے میں اوپن ٹرائل شروع ہوگا، اور پہلے ہفتے سے تیسرے ہفتے تک اس کی سماعت ہو جائے گی ختم۔ اور دعا کریں کہ جو بھی ہو پاکستان کے حق میں بہتر ہو۔ تب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید دیکھتے ہیں صابر شاکر صاحب کے اس ولاگ میں کہ بھی وہ کیا کہتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں صابر شاکر صاحب کو۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات پر ہم اپنے آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اس وقت رات کے بج چکے ہیں، 12 بجنے والے ہیں، لیکن پولیٹیکل ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں۔ کچھ دیر پہلے کچھ اہم اعلانات بھی کیے گئے۔ جوڑ توڑ ہو رہا ہے پاکستان کی پالیٹکس میں۔ وزیر اعظم کون ہوگا اس کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے تقریباً، اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا فیصلہ بھی ہو چکا، اور ساتھ ہی ساتھ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی نامزد ہو چکے۔ لہٰذا اب حکومت سازی کی طرف معاملات آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور جو مینڈیٹ آیا تھا اس مینڈیٹ کے مطابق، اور علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہوں گے، اور یہ نامینیشن کی تھی عمران خان صاحب نے۔ یہ ساری ڈسکشن کریں گے پاکستان کی پالیٹکس، لیکن اس وقت جو ہم نے رات کے اس پہر آپ کو تکلیف دی ہے، ایک اہم ترین خبر ہم نے بریک کرنی ہے، اور وہ خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے متعلق۔ اور یہ خبر جب ڈسکلوز ہوگی اور انفولڈ ہوگی تو اس کے لیے عمران خان صاحب کے لیے بہت ہی اچھی خبریں اس میں سے برآمد ہوں گی، اور جنرل باجوہ صاحب کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اور چونکہ معاملہ ہی کچھ ایسا ہے، عمران خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں، اور ایک رجیم چینج آپریشن ہوا تھا۔ رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں اس رجیم چینج آپریشن کو مکمل کیا گیا تھا۔ کیسے کیا گیا تھا؟ عدم اعتماد کے ذریعے۔ وہ بظاہر تحریک عدم اعتماد تھی، لیکن حقیقت میں وہ تحریک عدم اعتماد نہیں تھی، بلکہ ایک رجیم چینج آپریشن اس کو کہتے ہیں، وہ تھا۔ اور اس کے لیے بہت ایک سائفر آیا تھا، اور سائفر کا معاملہ بہت دور تک تلک گیا۔ عمران خان صاحب کو اس مقدمے میں ہوئی سزا۔ کچھ سائفر کیس ہے جی، بیسیکلی اشارہ کر دیتا ہوں میں آپ کو، اور یہ اہم نوعیت کا ہے، اس کے بعد ڈیٹیلز آپ کے ساتھ کروں گا۔ دیکھو یہ سلسلہ
शुरू हुआ, साइफर से शुरू हुआ था। अब मैं आपको आता हूँ जी अहम ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि क्या ब्रेकिंग न्यूज है। वाकईतन बहुत बड़ी खबर है, बहुत ही बड़ी खबर है, और इसमें इमरान खान साहब को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, और पाकिस्तान के अवाम को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। जनरल बाजवा साहब के लिए मुश्किलात होंगी, और बहुत ज्यादा मुश्किलात होंगी, क्योंकि ये सिलसिला शुरू हुआ था। बैकग्राउंड आपको बता दूं कि एक 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब जो तहरीक अदम एतमाद हुई, ये इसका आगाज हुआ था 7 मार्च को। 7 मार्च को एक साइफर आया था, और साइफर आया था अमेरिका से। पाकिस्तान के सफीर असद मजीद साहब ने, डॉक्टर असद मजीद साहब ने भेजा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो साइफर आया, साइफर या दफ्तर खारजा, और उसको छुपा के रख दिया गया था, और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। डॉक्टर असद मजीद साहब ने कहा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट था और कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब, जो उस वक्त के वजीर खारजा थे, प्रिंसिपल ऑफिसर, उनको फोन किया और उनसे दरियाफ्त किया कि उन्होंने तो इसी अंदाज में कहा कि शायद मिनिस्टर जो है कुरैशी साहब बाखबर होंगे और उनको तक वो पत्र पहुंच चुका होगा। लेकिन जब उन्होंने पूछा कि ये कि बहुत इंपॉर्टेंट एक साइफर भेजा था, तो उन्होंने कहा कि मेरे इल्म में नहीं है, और उन्होंने फिर बताया, और उसके नतीजे में फिर साइफर निकलवाया गया और पता किया, और उसके बाद फौरी तौर पे इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर को आगाह किया गया। और वो साइफर था अमेरिका से, डॉक्टर असद मजीद साहब ने भेजा था। डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक मीटिंग थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो रशिया का इमरान खान साहब ने विजिट किया है, उससे हालात काफी खराब हैं, और न सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोप और बरतानिया जो है, मगरबी ममालिक, वो सब के सब पाकिस्तान की बैंड बजा देंगे। और अगर आप लोगों ने इमरान खान साहब को तब्दील ना किया, यह हुकूमत तब्दील ना की, तो फिर आपको संगीन तरीन नताइज भुगतना होंगे अमेरिका की तरफ से पाकिस्तानी सरकार को। और अगर आपने इमरान खान साहब को तब्दील कर दिया, और जो तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में, तो फिर आपकी जान खलासी हो सकती है, दूध खलासी हो सकती है, आप पे रहम किया जा सकता है। यह साइफर था, और इस साइफर के आने के बाद पहले छुपाया गया, जब छुपाने के बाद जब बरामद हुआ, तो फौरी तौर पे इमरान खान साहब को आगाह किया गया, प्राइम मिनिस्टर को, और उन्होंने सारा फिर वो कार्रवाई आ चुकी है, बनीगाला में मीटिंग कॉल की, हंगामी तौर पे सेक्रेटरी खारजा को बुलाया, ये सब कुछ हुआ, और उनको ब्रीफ किया गया, और उसके बाद फिर ये मामला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की तरफ रेफर किया गया। और उससे पहले क्योंकि ये 7 मार्च को आ चुका था, और उस 7 मार्च की जो गुफ्तगू थी वाशिंगटन में, डोनाल्ड लू की, डॉक्टर असद मजीद हमारे एम्बेसडर, और हमारे डिफेंस अताशी जो कि ब्रिगेडियर थे, और उनके साथ एक नंबर 2 ऑफिसर थे सिविल साइड से, फॉरेन ऑफिस के। ये 3 लोग थे, और 3 लोग ही उधर थे, दूसरी जानिब से थे। डोनाल्ड लू उनकी क़यादत कर रहे थे, हमारी की क़यादत जो है वो एम्बेसडर असद मजीद साहब कर रहे थे। तो ये सिलसिला हुआ था। ये बैकग्राउंड मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत जरूरी है बैकग्राउंड बताना, क्योंकि जो कुछ होने जा रहा है वो एक अनबिलीवेबल है, और ये कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब कुछ भी होगा। तो उसके बाद डॉक्टर असद मजीद साहब के साथ जो डाउनलोड की मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने सारे का सारा एज इट इज रिपोर्ट करके पाकिस्तान को भेज दिया, पाकिस्तान गवर्नमेंट को। और उसमें उन्होंने ये भी कहा, डॉक्टर असद मजीद साहब ने, कि ये जो है साइफर जो है, जो जुबान इस्तेमाल की गई और जो धमकाया गया, ये गैर पार्लिमानी और ये गैर सिफाती है, सिफाती आदाब के मुनाफी है, और हमारे मामला में मुदाखलत है, पाकिस्तान के मामला में, इसलिए इसको डिमाश किया जाए और एहतजाज किया जाए। तो जब मैं आपको रिकॉल करके सारी बात बता रहा हूँ कि जब ये खबर पहुंची, और फिर एक हमारे यहाँ ओआईसी का सरबराही इजलास था, तो जनरल बाजवा ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से कहा कि अभी इस इशू को न छेड़ा जाए, ओआईसी का इजलास हो जाए, और उसके बाद हम इस पे बात करेंगे। वो बाजवा साहब जो है मुसलसल उसको टखा रहे थे, लिंगर कर रहे थे, उसको दबा रहे थे, लेकिन बिलाखिर ओआईसी हो गई। और उसके बाद इमरान खान साहब ने जलसा-ए-आम में एक कागज लहराया और बताया ज़बानी तौर पे कि ये चिट्ठी आ चुकी है, और हमारे मामलात में तख्ता उलटने का हुक्म आ चुका है, हुकूमत के तख्ता उलटने का, यानी कि इमरान खान साहब की हुकूमत का, और उन्होंने इस मामले को डिस्क्लोज कर दिया। जब हमने ये खबर दी, अब आपको मैं बता रहा हूँ एक प्रूफ के तौर पे, एक एग्जैक्टली जो हुआ था। जब ये खबर हमारे पास पहुंची, तो हमने भी अपने प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में ये खबर ब्रेक की। अरशद शरीफ मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में मिला दे, शहीद अरशद शरीफ ने भी इस खबर को ब्रेक किया। और जब हम ये खबर ब्रेक कर रहे थे, तो आईएसपीआर की तरफ से ये कहा गया कि अगर इनको कहें कि अगर ये सच्चे हैं, तो ये ऐसी चीजें जो हैं वो इस तरह से नहीं लहराई जाती, बल्कि अगर ये वाकईतन ऐसा है, तो फिर इसको लेके जाया जाए, पार्लियामान में लेके जाएं, कैबिनेट में लेके जाएं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में लेके जाएं, अप्रोप्रिएट फोरम पे लेके जाएं, और इसको वहां पे जेर बहस लाएं। ये जलसों में ऐसी बातें करने का क्या फायदा, सियासी पखंड ना बनाएं, बल्कि अगर ये सच्चे हैं तो इनको लेके जाया जाए।
ये जब हमें खबर मिली कि इस तरीके से, तो हमने अकॉर्डिंगली वो सारा कुछ किया और हमने भी कहा कि बिल्कुल बात तो जेन्युइन है कि ये सियासी जलसे में के बजाय ये खबर आनी चाहिए, ये डिस्कस होना चाहिए कैबिनेट में और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में। और उसको हुकूमत ने उसी को फॉलो किया और फिर इमरान खान साहब ने कैबिनेट मीटिंग भी कॉल कर ली, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी कॉल कर ली, पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स को भी ब्रीफ करने का फैसला किया, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के हेड्स जो हैं वो रफू चक्कर हो गए और उन्होंने इसकी ब्रीफिंग लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनको कॉल जा चुकी थी कि इस मसले पे आपने नहीं आना, लिहाजा वो नहीं आए। और उसके बाद फिर कैबिनेट की मीटिंग हुई, फिर कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में उस साइफर की हकीकत को तस्लीम किया गया, जबकि दूसरी जानिब जो पीएमएलएन या उनसे जुड़े हुए लोग थे, लाइक माइंडेड दानिश्वर थे, वो मुसलसल इसको मजाक कह रहे थे कि साइफर एक मजाक है, अगर ये है वाकतन है तो मैं सहाफत छोड़ दूंगा, किसी ने कहा मैं सियासत छोड़ दूंगा, किसी ने कहा मैं इदारा छोड़ दूंगा, पता नहीं क्या कुछ कहा गया और वो सारे का सारा रिकॉर्ड पे मौजूद है। लेकिन साइफर एक हकीकत था और उसको छुपाया जा रहा था। लेकिन जो साइफर की बुनियादी बात थी वो ये थी कि इमरान खान साहब ने जो रशिया का विजिट किया है, अमेरिका को किसी ने बताया था कि हम तो नहीं चाहते थे कि रशिया का विजिट इमरान खान साहब करें, ये इमरान खान साहब का जाती फैसला है और जाती फैसला यही बताया गया था। उसको डोनाल्ड लू ने रिपोर्ट किया डॉक्टर असद नजी साहब के सामने कि इमरान खान साहब जो है वो अपने जाती फैसले की बुनियाद पे उन्होंने रशिया का विजिट किया। डॉक्टर असद मजीद वो इस बात की तरदीद करते रहे और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, बल्कि ये रियासती फैसला है, रियासत पाकिस्तान का फैसला है, इमरान खान साहब का रशिया का विजिट, और ये विजिट बहुत अरसा पहले शेड्यूल था और इसलिए ये ना ही अचानक हुआ है और ना ही ये इमरान खान साहब का जाती फैसला है, बल्कि ये रियासत पाकिस्तान का एज पर पॉलिसी, पाकिस्तान की एज पर पॉलिसी पाकिस्तान का ये फैसला है और ये विजिट हुआ है। अब जनरल बाजवा साहब जो है वो इस मामले को इमरान खान साहब को कहते रहे कि इसको न छेड़ें और उधर अमेरिका को कोई बता रहा था कि ये इमरान खान साहब का जाती फैसला है। ये एक बहुत बड़ी जो है डेवलपमेंट थी। तो वो कौन था? वो आज तक छुपा हुआ था और अभी तक छुपा हुआ है। अभी तक रिकॉर्ड पे नहीं आ सका कि वो कौन था जो अमेरिका को, अमेरिकी हुकाम को इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि डिसइंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहा था और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो है, स्ट्रेटेजिक रिलेशन और खारजा ताल्लुकात और जो कि बहुत ज्यादा तवील है, उनको वो डिस्टर्ब कर रहा था। और ये एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज थी कि, और बल्कि डिसइंफॉर्मेशन थी, जिसके बाद वो साइफर जब इमरान खान साहब ने लहराया तो उसके बाद साइफर नहीं था बल्कि कागज का टुकड़ा। उसके बाद जो अमेरिका के इस्लामाबाद में अमेरिका की नाजिमुल उमूर थी, उन्होंने एडिशनल सेक्रेटरी अमेरिका जो कि फॉरेन ऑफिस इस्लामाबाद में पाकिस्तान की साइड पे थे, उनसे रब्ता किया गया व्हाट्सएप पे और उनसे कहा गया कि वो ये डॉक्यूमेंट हासिल करना चाहती हैं जो कि लहराया है इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ने जल्द से। लेकिन उन्होंने फौरी तौर पर एडिशनल सेक्रेटरी ने सेक्रेटरी खारजा को इन्फॉर्म किया और वजीर खारजा को इन्फॉर्म किया कि इस तरीके से ये डिमांड आ रही है और उसके बाद फिर उसको अकॉर्डिंगली उसको हैंडल किया गया। तो ये एक तरफ ये चल रहा था। उधर उस मीटिंग को रिपोर्ट कर दिया इस्लामाबाद में और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की एक मीटिंग हुई, साइफर को तस्लीम किया गया, उसमें तमाम अस्करी क्यादत मौजूद थी, पाक बहरिया के सरबराह, पाक फिजाइया के सरबराह, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनके साथ टीम, डीजीआईएसआई, डीजीआईबी, ये सब के सब मौजूद थे उसमें और ब्रीफ किया गया। ब्रीफ करके उसमें बताया गया, उसमें फैसला किया गया कि इस पर डिमार्च किया जाएगा। डिमार्च किया गया वाशिंगटन और इस्लामाबाद पैरेलल दोनों जगहों पे। लेकिन पहले तो ये कहा गया कि साइफर है ही नहीं, उसके बाद कहा गया कि साइफर है लेकिन ये इसमें कुछ भी नहीं है, ये एमी फजूल बात है और इसलिए भी कहा गया। इसी बुनियाद पे ये सारी बात की जाती रही। लेकिन उसके बाद फिर जैसे जैसे चीजें डेवलप हुई और उसके बाद पता चला कि जो पहली बात थी इमरान खान साहब ने की
وہ बात बिल्कुल दुरुस्त थी और इमरान खान साहब सही बात कर रहे थे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी, जो कि वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने भी इसको ऑन किया और इस साइफ़र की हकीकत को बताया कि साइफ़र एक अफ़साना नहीं है, बल्कि हकीकत है। बहुत बड़े-बड़े दानिश्वर जो कि जुड़े हुए थे मुस्लिम लीग नवाज़ से या दूसरी साइड से, वो ये कह रहे थे कि ये कुछ भी नहीं है। जबकि हमें खुद बताया गया था कि इमरान खान साहब अगर वाक़तन सच्चे हैं, तो फिर इन्हें कहें कि ये वफ़ाक़ी काबीना में ये लेके जाएँ मामला, या सिक्योरिटी कमेटी में लेके जाएँ, पार्लियामेंट में ले जाएँ। तो इमरान खान साहब ने वो सारा काम किया, हर जगह लेके गए और वफाकी काबीना को भी ब्रीफ किया। उसके बाद ये कॉपी, उसके बाद इमरान खान साहब चाहते थे इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई भी तैयार नहीं था और इसको हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था। और डॉक्टर शराफ सडल साहब से रब्ता किया गया और लेफ्टिनेंट जनरल तारिक खान साहब से रब्ता किया गया, लेकिन किसी ने भी इसको टच करने की हिम्मत नहीं की और सबने माजरत कर ली। तो ये सारे का सारा सिलसिला होता रहा और उसके बाद फिर जब ये चीजें हुई, लेकिन साइफर तो था और साइफर उसके बाद फिर हुआ ये कि जब इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई, इसी दौरान जो है वो तख्ता उलट दिया गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए, तहरीक अहमद के जरिए, रेजिम चेंज ऑपरेशन, जो साइफर में जो कुछ लिखा गया था उसके अकॉर्डिंगली हुकूमत तब्दील कर दी गई और इमरान खान साहब की छुट्टी करा दी गई। ये एक उसके अंदर जो उसका कंटेंट था उसके मुताबिक कर दिया गया। उसके बाद फिर इमरान खान साहब को इस पे शहबाज गवर्नमेंट ने इस पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, एफआईए को तह दिया और इमरान खान साहब फ्री एंड फेयर ट्रायल मांगते रहे मुसलसल कि इसका ओपन हियरिंग होनी चाहिए। लेकिन उसकी ओपन हियरिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद और 2 दफा हुक्म के बावजूद इसकी नहीं हो सकी ओपन हियरिंग, बल्कि जेल ट्रायल हुआ और जेल ट्रायल में भी बहुत कम लोगों को एक्सेस दी गई और वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर। इमरान खान साहब को इसमें सजा सुना दी गई है और वो सजा उनको सुना दी गई, वो इस वक्त अडयाला जेल में है, लेकिन उनको फ्री एंड फेयर ट्रायल नहीं दिया गया, ओपन ट्रायल नहीं दिया गया। अब आते हैं जी असल खबर की तरफ। इस दौरान इमरान खान साहब बुलाना चाह रहे थे गवाहान को, अपनी तरफ से गवाहान को बुलाना चाह रहे थे, लेकिन जैसे ही पता चला कि इमरान खान साहब गवाहान बुलाना चाह रहे हैं, तो आनन फानन बगैर वक्त ज़ाया किए अदालत ने फैसला सुना दिया और यहाँ तक कि इमरान खान साहब का जो बयान था अदालत में जेल ट्रायल के दौरान, उस पे दस्तखत भी नहीं लिए जज साहब ने और अबुल हसन जुल्करनैन साहब, और उस दिन जो कार्रवाई हुई इंतहाई मशकूक थी, वो दस्तखत नहीं हो सके। इसके बावजूद फैसला सुना दिया गया और अभी इमरान खान साहब जो है साइफर में जमानत पर थे, लेकिन वो जमानत के बाद, वो सजाएं सुनाने के बाद कुरैशी साहब भी जेल में है और इमरान खान साहब भी जेल में है। तो ये सिलसिला जो है, अब आते हैं जी इस दौरान सजाएं हो चुकी हैं, आपको मालूम है कि फिर आते हैं जी हुआ क्या है। अब लेटेस्ट डेवलपमेंट पैरेलल जो है अमेरिका में इस बारे में काम हो रहा था और अमेरिका में कोशिश की जा रही थी कि इस मामले को टेकअप किया जाए, क्योंकि इस साइफर के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो कशीदा हो गए काफी ज्यादा, और खासतौर पे साइफर के मामले में। और उसके बाद फिर ये एक इशू, एक बहुत खतरनाक इशू बन गया। इमरान खान साहब को जेल में डाल दिया गया, हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया, लेकिन साइफर जो है वो सदर ममलिकत को भी भेजी गई उसकी कॉपी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजी गई, चेयरमैन सेनेट को भेजी गई, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेजी गई, चारों मुसल्लह फार्स के सरबराहान के पास भेजी गई और प्राइम मिनिस्टर के पास भेजी इमरान खान साहब के साथ। और साथ ही साथ 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब साइफर को लिमिटेड डिक्लासिफाई कर दिया गया, महदूद पैमाने पे डिक्लासिफाई कर दिया गया। और उस रात हम भी, यानी कि मैं भी प्राइम मिनिस्टर हाउस ही था 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब, जो कि आखिरी रात थी इमरान खान साहब की वजारत उस्मा। वो जैसे ही वहां से हम वहां पे मौजूद थे और ये सारी सिचुएशन को देख रहे थे 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब, और उसमें जो जर्नलिस्ट वहां पे मौजूद थे जिनको मदऊ किया गया था कि हमने साइफर को डिक्लासिफाई कर दिया है और आप भी इसको देख सकते हैं। उसमें जो जर्नलिस्ट थे उसमें मैं खुद मौजूद था। इमरान खान साहब की ब्रीफिंग हुई, सवालों के जवाब हुए, हमने खबरें भी ब्रेक की, शहीद आशिफ शरीफ मौजूद थे और इसके साथ साबर घुमन थे, और इसके अलावा जो दीगर में थे जमील फारूकी थे और फरीदा इदरीस थी, समी इब्राहिम साहब थे, हम सब थे, और डॉक्टर शहबाज गिल उधर थे, अली जैदी उधर थे, ये तमाम जर्नलिस्ट उधर मौजूद थे, शहीद आशिफ शरीफ थे, ये बहुत ही 6-7 जर्नलिस्ट मौजूद थे, और इमरान रियाज खान थे। हम सब उसी रात उधर थे और जिस रात इमरान खान साहब जो हैं वो डायरी लेके वहां से निकले और फिर खबरें भी फैलाई गई कि जनाब कोई आए थे, वर्दी वाले आए थे, उनका गिरबान पकड़ा, उनको ये किया वो किया। वो सारे का सारा झूठ था, फसाना था।
और सिवाय इसके कि इमरान खान साहब को डिग्रेड किया जाए, डिस्ग्रेस किया जाए, इसके अलावा कुछ नहीं था। हमारे सामने हम वहाँ पे मौजूद थे, इमरान खान साहब के साथ बैठे रहे, गपशप लगाई, चाय पी और उसके बाद वो रात गए जो है वहाँ से निकले और उधर कौमी असम्बली में कार्रवाई शुरू हो गई, अदम एतमाद की और उस वक्त ये भी हुआ, रात भर अदालतें भी खुलवाई गई, हाई कोर्ट इस्लामाबाद और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसमें बड़ी तनकीद हुई। लेकिन बहरहाल और उस रात जो साइफर की कॉपी है वो भिजवा दी गई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और दीगर जो लिमिटेड क्लासेस डिक्लासिफाई किया था उन सब अथॉरिटीज को, और जर्नलिस्टों के लिए ये सहूलत थी कि अगर वो चाहें तो वो पढ़ सकते हैं। ये है साइफर की कहानी और साइफर की फिर हुई सजा। अब आते हैं जो मेजर डेवलपमेंट हुई है वो हुई है अमेरिका में। अमेरिका में ये केस खुलने जा रहा है और ये केस खुल भी रहा है और इसकी ओपन समाअत होगी, ओपन समाअत होगी और पूरी दुनिया इसको सुन सकेगी, जान सकेगी कि ये साइफर क्या था और साइफर किसने किसको उसमें किन बातों का जिक्र है, अमेरिका को किसने इंफॉर्मेशन दी थी कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो विजिट कर रहे हैं रशिया का, ये उनका जाती फैसला है, रियासती फैसला नहीं है। कौन था वो जो ये सब कुछ कर रहा था और डोनाल्ड लू ने किस बुनियाद पे, किन इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे, किस हुक्म पर ये सारी गुफ्तगू जो है वो पाकिस्तान के एम्बेसडर असद मजीद से की और इस तरीके से की क्योंकि उसके बाद हुआ ये कि साइफर के आने के बाद और साइफर का जो इशू हुआ पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो खराब हुए और इस बुनियाद पर खराब हुए कि पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क है और जब कौमी सलामती कमेटी ने ये कह दिया जिसमें भी थी और मिलिट्री जनरल बाजवा भी थे, नेवल चीफ भी थे, एयर चीफ भी थे, DGISI भी मौजूदा ये भी थे और जब सब ने कह दिया कि ये खुल्लम खुल्ला सरीहन मुदाखलत हुई है पाकिस्तान के अंदरूनी मामला में और इस पे एहतजाज करना चाहिए, उस पे एहतजाज किया गया, सब कुछ किया गया। तो बहरहाल उसके बाद ही इस केस को सुप्रीम कोर्ट में और अब जो अहम तरीन कामयाबी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को जेल में इस केस को ओपन करने की कोशिश की जा रही थी। Intercept.com भी ये खबर दे चुका है और उसका मतन जो है वो शाया कर चुका है, लेकिन वो भी गैर मुसद्दिका है। अब आते हैं अब जो अहम तरीन कामयाबी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को जेल में बैठे हुए उसकी ओपन हियरिंग आ चुकी है। ये रेजोल्यूशन आ रही है जी कांग्रेस में, अमेरिकी कांग्रेस में रेजोल्यूशन आएगी मार्च के पहले हफ्ते में, यानी कि 7 मार्च से पहले पहले ये रेजोल्यूशन आ जाएगी। वो 5 को भी आ सकती है, 6 को भी आ सकती है, 7 को भी आ सकती है, इन 3 दिनों में से किसी एक दिन आ जाएगी और मुझे जो हमारे सोर्सेज हैं वो यही कह रहे हैं कि 7 तारीख से पहले पहले आएगी, 7 मार्च से। तो रेजोल्यूशन आएगी और रेजोल्यूशन में ये इशू टेकअप किया जाएगा और उसकी अप्रूवल ली जाएगी और उसके बाद डोनाल्ड लू को बुलाया जा रहा है अमेरिकी कांग्रेस की जो खारजा कमेटी है, फॉरेन कमेटी, उसमें डोनाल्ड लू को समन किया जाएगा और समन करके उनसे ये सारे का सारा साइफर जो है उसके बारे में उनसे सवालात किए जाएंगे और ये जो सवालात हैं, सवाल जवाब की नशिस्त है और जो उनकी समाअत है ये होगी मार्च के तीसरे हफ्ते में, यानी 21 मार्च से पहले पहले उसकी समाअत भी हो जाएगी और डोनाल्ड लू से सवालात पूछे जाएंगे और सवालात किस नौइयत के पूछे जाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि वहां पे एक बात है ध्यान में रखिएगा कि डोनाल्ड लू अंडर ओथ होंगे और उनसे जितने भी सवालात किए जाएंगे वो उनके जवाब देंगे और उनसे जो सवालात किए जाएंगे जवाबन किसी भी सवाल के जवाब में झूठ नहीं बोला जाएगा क्योंकि वहां पे झूठ बोलने की सजा बड़ी सख्त है और बहुत ज्यादा इसको लिया जाता है संजीदा, लिहाजा खबर भी मौजूद है और ये खबर यानी कि मार्च का पहला हफ्ता ये आएगी, रेजोल्यूशन करारदाद आएगी और उस करारदाद की अप्रूवल होगी और उसके बाद ये करारदाद के बाद मार्च 21 मार्च से पहले पहले इसकी ओपन हियरिंग होगी और ओपन हियरिंग सारी दुनिया जो है वो सुन सकेगी। जैसे हम सुप्रीम कोर्ट की लाइव कवरेज जो है वो सुन सकते हैं, पूरी दुनिया सुन सकती है और एक उसका लिंक दिया होता है, इसी तरीके से हम साइफर की जो ओपन हियरिंग है वो भी सुन सकेंगे, हम भी सुन सकेंगे, दुनिया के दीगर ममालिक भी सुन सकेंगे और इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। सवाल क्या किया जाएगा? सवाल डोनाल्ड लू से किया जाएगा और मैं आपको बता चुका हूं कि डोनाल्ड लू के पास सच बोलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा और सवालात मुतवक्के तौर पे जो सवालात हैं मुझे नजर आ रहे हैं वो होंगे जी के पूछा जाएगा, बुनियादी बात पूछी जाएगी कि आपने ये गुफ्तगू किस बुनियाद पे की, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कशीदा इस तरीके से हुए। पाकिस्तान है 25 करोड़ का मुल्क और अमेरिका जो है पब्लिक डिप्लोमेसी पे भी बहुत ज्यादा खर्च करता है और इसको हाईलाइट करने के लिए लिहाजा बहुत ज्यादा खर्च किया जाता है पब्लिक डिप्लोमेसी पे भी, तो अवाम नास में, ताकि हमारा परसेप्शन ठीक रहे। तो ये हुआ, लेकिन साइफर के आने के बाद पाकिस्तान के अवाम में जिस तरीके से इमरान खान साहब ने एजुकेट किया
तो उसके बाद पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जान गया कि ये तो एक प्रैक्टिस है और पाकिस्तान में होती रहती है, और लेकिन बताया है इमरान खान साहब ने डट, और वो वाकईतन डट गए। इस दौरान बहुत कुछ हुआ, और न सिर्फ ब्रुटैलिटी हमने देखी, और उसके साथ विक्टिमाइजेशन देखी, और ना किसी सियासतदान को माफ किया गया, ना किसी जर्नलिस्ट को माफ किया गया, और ना ही उनकी फैमिलीज को माफ किया गया। चादर चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को कमाल किया गया, शर्म और हया को कमाल किया गया। ये सब कुछ हुआ साइफर के बाद, ताकि ये जो है मामला यहीं दबा रहे। बहरहाल अब जी तकरीबन मैं आपको बता चुका। अच्छा, उसमें सवाल क्या होंगे? सवाल मुतवक्के तौर पे सवाल होंगे जी कि आपने डोनाल्ड ट्रम्प से पूछा जाएगा कि आपने ये ब्रीफिंग दी थी, और क्योंकि उसके बाद उस साइफर की कॉपी उनके पास मौजूद होगी। ये मैं आपको बता दूं, साइफर जो गुफ्तगू उसके बाद अकॉर्डिंगली पूछा जाएगा, और उसके बाद पूछा जाएगा कि आपने ये गुफ्तगू किस बुनियाद पे की और क्यों की, क्योंकि इस गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू के बाद पाकिस्तान के अवाम अमेरिका से दूर हो रहे हैं और मुतनफर हो रहे हैं। और ये भी बता दूं कि ये तारीख जो है वो मार्च का पहला हफ्ता क्यों रखा गया है। वो इसलिए रखा गया है कि इलेक्शन का मूड देखा जा रहा था कि 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम किसके साथ है। पाकिस्तान के अवाम इमरान खान के साथ है, या फिर पाकिस्तान के अवाम दूसरी इमरान खान साहब के मुखालिफिन के साथ है। तो 8 फरवरी का इंतजार किया जा रहा था। तो 8 फरवरी को जब देख लिया कि पाकिस्तान के अवाम जो है 2 करोड़ वोट जो है वो गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो इसका मतलब है पाकिस्तान के अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। लिहाजा उसके बाद ये फैसला किया गया, और एन उस वक्त यानी कि 8 तारीख को इलेक्शन हुए हैं 8 फरवरी को। तो आज आप देख लें कि तारीख हो गई है, 4 दिन गुजर चुके हैं, और आज 14 हो गई है। तो इन 4-5 दिनों में ये सब कुछ इस दौरान डेवलपमेंट हुई है, और आज ही खबर आई है, मेरी बात हुई है वाशिंगटन में अपने सोर्सेज से, और फिर उसको मैंने काउंटर चेक करने की कोशिश की, और उसमें हमारी जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उसने इसको कंफर्म किया, क्योंकि आगे उन्होंने पूछा, उन्होंने कंफर्म किया कि बिल्कुल ये दुरुस्त है कि मार्च के पहले हफ्ते में साइफर के मामले में डोनाल्ड लू को समन कर लिया जाएगा। रेजोल्यूशन आ जाएगी मार्च के पहले हफ्ते में, 7 से पहले पहले आ जाएगी। उसके बाद उसके नतीजे में डोनाल्ड लू को बुलाया जाएगा, और फिर कमेटी जो है उन पे क्वेश्चन करेगी और उनको ड्रिल भी करेगी, क्योंकि उनसे कहा जाएगा कि आपने ये किस बुनियाद पे किया और इतनी गैर ईमानदारी का सबूत क्यों दिया। अगर ये सारा कुछ सच है तो जाहिर है वो कहेंगे सच है। तो ये होने जा रहा है। तो लिहाजा दूसरा सवाल होगा कि डोनाल्ड से पूछा जाएगा कि आपके पास कौन सी इंफॉर्मेशन थी, किस बुनियाद पे आप कह रहे थे, ये जो कुछ भी साइफर में कहा गया किस बुनियाद पे आपने कहा था, आपको किसने बताया कि इमरान खान साहब जो हैं वो रशिया गए हैं जाती फैसले की बुनियाद पे, और ये फैसला रियासत का नहीं है, ये किसने बताया। और जो उसमें साइफर में और कुछ बहुत कुछ लिखा गया है उसकी तस्दीक भी डोनाल्ड लू से की जाएगी। अब मैं आपको बताऊं कि डोनाल्ड लू अमेरिका और बर्तानिया और यूरोप में ये जो पब्लिक हियरिंग होती है पार्लियामान में भी, वो सेनेट हो या उनका लोअर हाउस हो, यानी कि हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड, अगर बर्तानिया का मिसाल देखें उधर कांग्रेस है और सेनेट है अमेरिका में, इसी तरीके से यूरोप में भी इसी तरह का मिक्सड सिस्टम है, किसी मुल्क में कुछ है किसी मुल्क में कुछ है, लेकिन ये बात है। तो ये पूछा जाएगा जी डोनाल्ड ट्रम्प से कि आपने किस बुनियाद पे बात की, आपको ये इन्फॉर्मेशन किसने पास ऑन की, और इस अंदाज में क्यों की, जिसके बाद एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो है वो आ चुका है, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कशीदा हो चुके हैं, और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम जो हैं वो अमेरिका को सवालिया नजरों से देखते हैं, मशकूक नजरों से देखते हैं कि उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया। लिहाजा जी ये एक सिलसिला है, ये सवालात ओपन सवालात होंगे, ओपन हियरिंग होगी, आप भी सुन सकेंगे, मैं भी सुन सकूंगा। उनकी जो लिंक है लाइव स्ट्रीम का, उस लिंक पे जाके हम देख सकेंगे, जैसे आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं इसी तरीके से हम उनको भी देख सकेंगे, और वो रिकॉर्डेड होता है और उसमें झूठ की गुंजाइश नहीं होती, गलत बात उसमें नहीं की जाती, क्योंकि वहां पे गिरफ्त बहुत है एक झूठ बोलने पर। तो साइफर का जो है, अच्छा इसमें जी जो मुसलसल हमें इन्फॉर्म करते रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि मुसलसल जो इस सिलसिले में कोशिश करते रहे हैं, वो अलीमा खान, इमरान खान साहब की हमशीरा, वो बार बार कहती रही थी कि ये सिर्फ क्योंकि ये इनको बताया जाता रहा कि हम किसी कोर्ट में जा रहे हैं, कि किसी अदालत में अमेरिका या बरतानिया में, लेकिन एग्जैक्ट क्या हो रहा था ये किसी को भी नहीं पता था, ये इतना सीक्रेट मामला था। लिहाजा अब पता चला है कि वो ओपन हियरिंग और वो सब कुछ, और अगर क्योंकि ये है मार्च का तीसरे हफ्ते में हो जाएगी और नई हुकूमत भी आ चुकी होगी, अमेरिका के तेवर बदले हुए हैं, और अमेरिका ने जो पिछले 2-3 ब्रीफिंग में जो सवालात उठाए, उनसे सवालात पूछे गए, तो उनके जवाब में उन्होंने आम इंतखाबात में जो धांधला हुआ बल्कि डकैती हुई है उसकी साफ शफाफ तहकीकात का मुतालबा भी किया हुआ है। तो इमरान खान साहब होने जा रहे हैं जी सुरखरू, और चूंकि डोनाल्ड लू ने वो सब कुछ बातें बता देनी है, वो कौन था, वो कौन कहाँ है इस वक्त, वो कौन है किधर छुपा हुआ है, और वो सारा का सारा नाम इस बात का इम्कान मौजूद है
کے نام آ جائے. اور اس میں ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب نے 2 دن پہلے سابق نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا کیا ہے, گفتگو بھی ان سے کی ہے, انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ چڑھائی ہوئی ہے, وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ سچویشن ہے. ڈونلڈ ڈو صاحب جو ہیں وہ مصیبت میں آنے والے ہیں. پھر جو اہم کردار ادا کیا, جو میری اطلاع کے مطابق, کیونکہ واشنگٹن میں نے چیک کیا جرنلسٹ کمیونٹی سے, کیونکہ یہ تو بہت خوش تھے اور پاکستان کی نہ اسٹیبلشمنٹ اس پہ راضی ہوگی فارغ پاکستان اور نہ ہی ادروائز. تو لیکن یہ سوال, یہ کڑوا ٹھونس جو ہے وہ پیا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے, کیونکہ جان بولٹن جو ہے ان کا انٹرویو کیا تھا ابھی ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب نے, انہوں نے بھی اس بارے میں ہلکی پھلکی گفتگو کا آغاز کیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چیزیں جو ہیں وہ جا رہی ہیں اوپن, اور اس میں ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب بری ذمہ قرار پائیں, عمران خان صاحب بھی بری ذمہ قرار پائیں گے. اور جب یہ ساری باتیں ہو جائیں گی تو یہ اب اس کا فردر کیا ہوگا, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. فردر یہ ہوگا جی کہ جتنے پینترے بدلے گئے اور جو ظلم اٹھائے گئے اس سائفر کے نتیجے میں, تو اس کا نہ صرف امریکہ میں محاسبہ ہوگا بلکہ اس کی بنیاد پہ پاکستان میں بھی محاسبہ ہونا چاہیے. اور کیوں, کون, کیونکہ ایک یاد ہوگا میمو گیٹ آیا تھا. میمو گیٹ میں حسین حقانی صاحب نے اور منصور اجاز صاحب نے ایک خط لکھا تھا ایک بلیک بیری کے ذریعے, اور وہ بھیجا تھا امریکی حکام کو کہ زرداری صاحب پیپلز پارٹی کو ختم کرنا چاہتی ہے حکومت, ان کی حکومت پیپلز پارٹی کی. تو اس کے بعد وہ چیزیں کھل گئی تھی. تو اب جو ہے لیٹسٹ جو ہے جی ڈیولپمنٹ, بات کو ہم کرتے ہیں کلوزنگ سیریمنی کی طرف لے کے جاتے ہیں. بریف آپ کو کر دیتا ہوں, ایک بار پھر کر دیتا ہوں کہ ایک جناب یہ سوالات بھی آپ سے پوچھے جا رہے ہیں اور بہت سارے سوالات آ رہے ہیں اور دعائیں بھی آ رہی ہیں, تو بہت شکریہ آپ سب کا. تو اسی لیے یہ جو چیزیں ہیں جی یہ کھلنے والی ہیں. اور نئی حکومت جو ہے, اگلی بات جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ اگلی حکومت جو بن رہی ہے, اور اس سے پہلے یہ حکومت بن چکی ہوگی, لیکن مینڈیٹ چوری ہو چکا ہے, مینڈیٹ پہ ڈکیتی آ چکی ہے. تو اس حکومت کا کیا مستقبل ہوگا اور یہ حکومت کیسے کنٹینیو کرے گی, کیونکہ یہ حکومت بھی اس کے بعد اس ریجیم چینج کا حصہ بنی اور یہ بینیفیشل تھے. تو بہرحال اس حد تک جی ہیں. اور وہ کون تھا منظر عام پہ آنے والا ہے, اور اس کے لیے آج تاریخ ہے فروری کی 14. تو ایک مہینے تک, جی ہاں, ایک مہینے تک آ جائے گا یہ معاملہ, یا شاید 5 دن آگے ہو جائیں گے. مارچ کے تیسرے ہفتے میں یہ ہیئرنگ ہونی ہے. تو دوسرا علیمہ خان صاحب آنے تھی, اس میں بہت کام کیا جی میری اطلاع کے مطابق. علیمہ خان اس کو لیڈ کر رہی تھیں. اور ادھر واشنگٹن میں جو تھے پاکستان تحریک انصاف کے جو سب سے زیادہ ایکٹیو تھے وہ ڈاکٹر شہباز گل تھے. انہوں نے بھی اس پہ کام کیا ہے. اور باقی خاموش مجاہد جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں جو یہ ساری چیزوں کو دیکھ رہے تھے اور بتا رہے تھے. تو امریکہ کے ساتھ تعلقات کو اس حد تک خراب کیا گیا. اور اب جبکہ اصل بندہ سامنے آ جائے گا اور بتایا جائے گا تو پھر عمران خان صاحب کی بات تو صحیح ہو جائے گی, اور اس کے بعد ہو سکتا ہے مزید کچھ سختیاں کریں. تو یہ ہے جی اب تک کی اطلاعات اور صورتحال. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آگے. فی الوقت اتنا ہی کہ یہ کٹا گیا ہے کھل. اور اجازت دیجیے, اللہ حافظ.